चले। तो एक बहुत बड़ा मजाक था, सॉरी एक बहुत बड़ा राज है, वो ये है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा होता। आपने ग्रेजुएट किया था? और भी पढ़ा लिखा होता, और भी पढ़ा लिखा होता, बहुत पढ़ाने का इरादा था, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो मेरे एक्शंस आपकी बातों से थोड़े पीछे चल रहे थे। ये चंद जुमले हैं जो मुझे बोलने की इजाज़त होती है। तो आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेरिकन एक्सेंट गवर्नमेंट स्कूल गर्ल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है अमेरिकन एक्सेंट गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। Water. Now, water. I'm Kamana Ganandini. I'm studying 6th class in this ZPHS Nirmanuru. अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। आंध्र प्रदेश के NTR जिले में अंग्रेजी सिखाने की यह नई कोशिश शुरू हुई है। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत निदामनुरू हाई स्कूल में 12 दिन का कैंप आयोजित किया। After this program, I know how to prepare the sentences and how to speak and other also. Before, water. Now, water. Before, beautiful. Now, beautiful. It's so easy. Professor teach me ka, cha, ta, ta, pa. Only that. And W, how to pronounce W and T. I feel so happy. My mother also feels so happy because I am speaking in American accent like American. Hello everyone, good afternoon Manindra. I am studying 6th class in this ZPHS Nirmanuru. The summer camp helps me many things. There are 4 sections. First section, scene with daily routine followed by language games. The afternoon section was started with story time and read along gap usage. We also have some practice time with skits, stories, news presentation and monologues and many more. I'm very happy to learn English. Teachers are on the way to keep us away from the fear of speaking English. मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने बेंडापुडी स्कूल के बच्चों की तारीफ की है। ये स्कूल ककिनाडा जिले में है और यहाँ के बच्चे अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। हालांकि इन बच्चों को कुछ ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोग इस बात पर सवाल भी उठा रहे हैं कि बच्चों को अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी क्यों सिखाई जा रही है। Not all children are getting the American accent. Actually, officials also said that the main objective of this camp is not only get the command on American accent, they have to communicate in English. Whether it is American English, some people got the American accent very easily because they have some academic knowledge also, then they easily catch the American accent. But as the remaining people are able to communicate in English, whether it is Indian English or British English or American English, it will take some time to get the complete American accent. It will take some more time. इस ट्रेनिंग से बच्चों में जो बदलाव आ रहा है, उससे बच्चों के माता पिता भी काफ़ी खुश हैं। చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడింది, కలెక్టర్ గారు కూడా మెచ్చుకున్నారు. ఇదే వాట్సాప్లో ఇది సెండ్ చేశానండి మా బంధువులకి అమెరికాలో. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, మా ఇలా ఉంటే ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు ఓన్ చేసుకుంటారు, మన ప్రాంతం వాళ్ళు ఏమైనా ఓన్ చేసుకుంటారు, ఇక్కడ మమ్మల్ని ఏంటంటే ఇండియన్ అని అడుగుతారు, ఇలా మాట్లాడితే ఈ అమెరికన్ యాక్సెంట్ కాబట్టి అమెరికన్ ఏమనుకుంటారు బై బర్త్, అందుకని ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తాయి అని అనగానే మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. जी जनाब, बहुत आला। अच्छा ये समर वेकेशन का भी टाइम, अच्छा एक चीज़ है, थोड़ी सी बात को समझिएगा, है ना। एक तालीम छुट्टियाँ, थोड़ा गैप, छुट्टियों का मतलब थोड़ा गैप, रिलैक्स, उसको भी एक तरह से यूटिलाइज करना, एक तरह से किसी न किसी काम में लेना, किसी न किसी तरीके से ज़ाया ना करना। तो इसका मतलब ये है, अच्छा इसको ना समर वेकेशन के दरमियान में इंग्लिश सीखना, इसको एक तरह से बच्चों के चेहरों पे जो खुशी दिख रही थी ना,
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसको एक तरह से खेल समझ रहे हैं, एंटरटेनमेंट समझ रहे हैं कि अमेरिकन स्टाइल में इंग्लिश बोलना, फिर घर वालों तक वो बात जा रही है, फिर बच्चे बताते होंगे घर में कि इसको इस तरह बोलते हैं, अमेरिकन में इस तरह बोलते हैं, वो बच्ची बता रही है ये मामा पापा के से इस तरह जुमले, फिर इस तरह जुमले, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये होता है सही मायनों में वक्त की कदर करना। और कहते हैं कि जिसने वक्त की कदर नहीं की, अच्छा बच्चियों की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं लग रही थी, मतलब बिल्कुल ही इस वक्त अगर अच्छा इस वक्त अगर ये अंग्रेज़ी सीख लेते हैं, आपको पता है दुनिया का बहुत बड़ा लिटरेचर जो है, बहुत बड़ी नॉलेज जो है वो इंग्लिश में, वेबसाइटें ज़्यादातर इंग्लिश में, बुक्स ऑलमोस्ट। मैं अपना बता दूं, आज एक खुल के राज बता देता हूँ, आपको भी पता चल जाएगा, बहुत बड़ा राज है ये मेरा। मैं जो हूँ मैं बम नहीं फोड़ रहा हूँ, आपने बोला बहुत राज बहुत जो बड़ा है, मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा राज मैं है? बहुत पढ़ा लिखा करती हैं हूँ। आप, पता है इससे भी बड़ा है कोई? अच्छा बताए बताए, अच्छा सॉरी, मजाक 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 मजाक, चले। तो एक बहुत बड़ा मजाक था, सॉरी एक राज बहुत था। बड़ा राज है, वो ये है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा होता, आपने ग्रेजुएट किया था? और भी पढ़ा लिखा माशाल्लाह, होता, माशाल्लाह। और भी पढ़ा लिखा होता, बहुत पढ़ाने का इरादा था, लेकिन सारी चीज़ें उर्दू में होती, तो मैं वहाँ फंस गया एमए में, मास्टर में, कि जहाँ किताबें सारी इंग्लिश में आ गई थी। तो आपने ग्रेजुएट कैसे किया? ग्रेजुएट तो मतलब आपने तो उन दिनों में ग्रेजुएट किया उर्दू- जब मैट्रिक भी बहुत हुआ करता उर्दू था। कॉलेज में किया है ना मैंने, अच्छा, उर्दू कॉलेज में किया है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उर्दू में हुआ कर करती सकते थी, तो थे, आपने काम चला लिया। सिर्फ लेकिन इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगी। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई है कि किसी तरीके से दूसरे नंबर ज़्यादा लेके इंग्लिश को देता था मैं। 33 इंग्लिश में मार्क्स तो चाहिए ना पास होने वो तो ले आता था अच्छा, मैं। वो ले आते थे, ठीक है। उसके अलावा जो है दूसरों के मार्क्स अच्छे होते थे, तो फिर इंग्लिश और पास और अच्छे नंबरों से हो जाता सही है, था, बैलेंस हो जाता था। इंग्लिश में मेरे 34 35 क्लास में यानी पासिंग आ जाते थे। क्लास में सबसे पहली पोजीशन है, लेकिन इंग्लिश में मार्क्स इंग्लिश में 34 है। इंग्लिश के टीचर आए, हाँ भाई 9 क्लास में इंग्लिश के टीचर आए 9 क्लास में, हाँ भैया सबसे ज़्यादा कौन किसने नंबर लिए? मैंने कहा खड़े हो जाओ, तुम्हारे। अच्छा मैं तो इतना इंग्लिश के उनको आइडिया था कि सुनो तो इंग्लिश के सही, टीचर थे वो। सुनो तो सही, इंग्लिश के पीरियड में तो ऐसी बात है, जिसको जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता तो इंसान थोड़ा सा यूँ रहता है, हाँ जी, छुपा हुआ हाँ रहता जी, है, हाँ दिखे जी, भी नहीं, कोई सही, सवाल आ जाए, तो इतना परमानेंट नहीं था इंग्लिश की क्लास में। तो उसने बोला आप आए हो, अच्छा एवरेज स्टूडेंट लगते हैं। ज़बरदस्त। तो क्या हुआ, इंग्लिश में कितने आए? 34। हैं? फिटे मुँह बाकायदा पंजाबी सर थे, उन्होंने ये कहा, सलवाते? उन्होंने हाँ सच है, ये सच है, सच्ची? उन्होंने कहा फिटे मुँह चल बैठ जा। गजब बेइज्जती। सुनो तो सही, उसने दूसरा बात ही नहीं की कैसे आए, कितनी मेहनत की। उनको आइडिया था ना, पूरी क्लास में पूरा सारा आपको झेल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पहले से पढ़ा रहे हैं, 8 में भी पढ़ाया होगा, 7 में भी पढ़ाया नहीं होगा। नहीं फिर हर क्लास का अलग टीचर होता है ना। नहीं, हमारे तो ऐसा था कि हम 6 क्लास से जो टीचर थे इंग्लिश के वही 10 तक नहीं रहे। नहीं हमारे हर गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट नहीं स्कूल? प्राइवेट स्कूल, लेकिन हर क्लास के अपने टीचर्स होते हैं। हमारे वही ऐसा था, हिसाब खैर। किताब नेचुरल पता होती है बच्चे की। अच्छा एक साथ भी काफ़ी है वैसे समझने के लिए, आप जैसे इंसान को तो समझ गए होंगे आप क्या हैं क्या नहीं है। खैर बहरहाल लेकिन बड़ी बात है कि A+ मास्टर आपने बनाया 9th मास्टर में। हाँ मैट्रिक में भी बस इंग्लिश ज़बरदस्ती हुआ था। मास्टर में फिर मैं, अच्छा मेरा सब्जेक्ट कौन सा था, मैंने मास्टर किस में करना शुरू किया था 1-2 साल? इंग्लिश, 4 साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तो पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा। लेकिन ये है कि डार्विन थ्योरी और ये और वो फलानी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, सही। लेकिन मसला ये आया कि अब सारी चीज़ें इंग्लिश में थी, फिर लेक्चर इंग्लिश में, फिर वो वैसे आप सार कर लेते, मुझे मैं कर लेता, आप में मुझे कर सकते मैं कर लेता, मैं बता तो रहा हूँ। इंग्लिश में मार खा गए ना। अच्छा मैं अच्छा तब नहीं थी आपकी लाइफ में, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती। हो सकता है। अच्छा मैं कोशिश कर, अच्छा मैंने मज़े की बात बताऊँ, मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिए, उसकी वजह मैंने कहा ज़िंदगी में मैं कभी फेल नहीं आया हूँ, अगर मैं फेल आ गया तो मेरी तो ये मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा, इससे बेहतर है बस ग्रेजुएशन बहुत है। मैंने फैसला किया कि आप फेल होने के चांसेस हैं तो साइड पे हो जाए, अपनी इज्जत अपना कटोरा कटोरा यानी आप इतना मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो आप फेल होने से डर गए और भाग गए इस वजह से कि सब कुछ इंग्लिश में था और इंग्लिश मैंने बस निभाई थी। अच्छा, तो ऐसा भी होता है लोग कोर्सेज कर लेते हैं, शॉर्ट कोर्सेज। अच्छा हाँ, अब एक सुने कोर्स मैंने किया भी 2-3 महीने किया भी सही इंग्लिश का कोर्स, जो सिर्फ इंग्लिश, वो एक अलग चीज़ है। वो क्या है मैं बताऊँ आपको क्या? वो कन्वर्सेशन सिखा रहे थे। हाँ तो सही है, इंग्लिश ऐसे ही सीखते हैं। नहीं तो सुने तो सही ना, आपको बेसिक नहीं आता होगा?
पूरी बात तो सुने ना। किताबों में जो इंग्लिश के लेक्चर है वो तो बहुत प्रॉपर इंग्लिश होती है ना, एक अलग इंग्लिश। अच्छा यहाँ फलान, एक्सक्यूज मी, वो जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो बातचीत ही तो कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ, कन्वर्सेशन जो सिखा रहे हैं ना हाँ, इंग्लिश हाँ, वो इंग्लिश की, में लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ठीक है जी। उसमें क्या सिखा रहे हैं, उसमें बातें करना सिखा रहे हैं। आई ईट मैंगो बहुत हाँ, सिंपल पे आ जाते हैं। आई गो टू स्कूल लेकिन जो लेक्चर हैं उसकी इंग्लिश है वो थोड़ी मुझे अलग लग रही थी। सेम होती है। आप भाग गए, आपने बहुत जल्दी जज कर लिया। हो सकता है ठीक है ना, वो कोई इंग्लिश- समझाने वाली नहीं थी शायद। इंग्लिश होती है, सेम होती है। वो आपको थोड़ा सा ना बच्चों की तरह लेकर चलते हैं। बेसिक होता है, फिर लेवल्स होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा बेसिक और लेवल्स पे ध्यान देते तो आपको वो वाली इंग्लिश और बुक्स वाली इंग्लिश सेम ही लगती। खैर कोई ज़्यादा अंतर थोड़ी है। खैर वो जो नहीं हो सका उसके मुर्दे क्या उखाड़ना। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है सीरियसली। बड़ी मिस्टेक है, इट्स अ बिग मिस्टेक। अच्छा ये इस चीज़ से मैंने ये सबक सीखा है, हमारे कंट्री में दो तरह की लेवल नहीं होने चाहिए, उर्दू और इंग्लिश मीडियम। कुछ स्कूलें शुरू से उर्दू मीडियम स्कूलें हैं, ये बहुत बड़ी एक गलती है हमारी। और कुछ स्कूलें बच्चा पैसे वाला है और मतलब अच्छी फैमिली है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो वो प्रॉपर एक इंग्लिश मीडियम अलग स्कूल है। आपको मैं बताऊं, मैं बच्चों को टीच करती हूँ, मैं इनके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को देखकर शॉक्ड हूँ। हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। छठी से तो इंग्लिश शुरू करते हैं। तो नहीं आती, उन्हें मैट्रिक तक नहीं आ रही होती है। मतलब छठी से अगर इंग्लिश शुरू आप कह रहे हैं करेंगे, जैसे आपने 33 मार्क्स लिए, 34 मार्क्स लिया, आपका मसला नहीं था। इंग्लिश हमें सिखाई बहुत लेट जाती है। और प्राइवेट स्कूल में तो फिर भी मैं कहूँगी टीचर्स नहीं, क्योंकि उनको उस बात तो salary शुरू मिल से रही होती है। हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने जो देखा है प्राइवेट स्कूल्स में बड़ा फोकस है इंग्लिश पे फिर भी, क्योंकि उनको समझ गए, सीख गए शुरू से इंग्लिश हाँ, सिखा रहे हाँ हैं। सिखा रहे हैं, वो नर्सरी से KG 1 से है। लेकिन आप यकीन करें, मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी। मुजम्मिल नाम का एक बच्चा मेरे पास आता था। आपको पता है, आई गो टू स्कूल, आई कम टू दी मार्केट, आई कम फ्रॉम दी मार्केट, ये सब छोटे छोटे मार्केट हो गया, कम हो गया, गो हो गया, उसको पढ़ना नहीं पता आता ही नहीं था था। उसको। और वो मैट्रिक क्लास का बच्चा, 9th क्लास का बच्चा। ये है। और अक्सर इस पे डिबेट भी होती है हमारे कंट्री में, लोगों मसले मसाइल भी कि यार ये दो तालीमी निज़ाम, बच्चे ने तो आगे पढ़ना ही है ना, आगे ही बढ़ना है ना। तो अगर एक बच्चा उर्दू मीडियम वाला है तो वो क्या करे? तो गवर्नमेंट स्कूल में भी चाहिए, देखे ना, ये भी तो है ना, ये भी तो गवर्नमेंट ही है ना, तो इस तरीके की इंग्लिश तो कम से कम एक रखें। बच्चा, एक अंकल हैं, उन्होंने अपने बच्चों को गवर्नमेंट में दाखिल किया हालात ख़राब होने की वजह से। तो गवर्नमेंट स्कूल में देखा कि पंखे नहीं है, डेस्कें नहीं है, ये नहीं है, तो वो थोड़े से मतलब बेहतर फैमिली थी, बिल्कुल ही डूबे हुए नहीं थे। उन्होंने कहा यार दुनिया मतलब बच्चे को पढ़ना चाहिए, ट्यूशन पे लगा देंगे, गवर्नमेंट में दाखिल कर देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फीसें कौन दे। और वैसे ही ट्यूशन वैसे ही पढ़ाना है प्राइवेट के बाद भी, तो इससे बेहतर है कि गवर्नमेंट में दाखिला करा के भी ट्यूशन पढ़ा ले। पता चला कि वो स्कूल वाले कभी उनसे डेस्क मांग रहे हैं, उस बंदे से कभी पंखा मांग रहे हैं, बोला पंखे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, स्कूल का बुरा हाल है। तो ये हालात हैं आपको गवर्नमेंट। मैं एक बहुत तल्ख हकीकत बताऊँ, हमारे यहाँ बेटा और बेटी, तो जो बेटियाँ होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया जाता है, जो नॉर्मल से जो मिडिल क्लास फैमिली, ये मैंने पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। और जो लड़के होते हैं उन्हें प्राइवेट स्कूल में डाल। या आपके साथ इस तरह हुआ होगा, आपको इस तरह पता होगा? नहीं, मेरे कि साथ आपके नहीं हुआ, पास क्योंकि नहीं मेरे पास नहीं स्टूडेंट आते हैं। हाँ। अच्छा, मैंने पेरेंट्स से पूछा, मैंने कहा इसके मामले में जब लड़की के मामले में अफोर्ड नहीं हो रहा तो लड़की के मामले में कैसे अफोर्ड हो रहा? और लड़की के अच्छा करा आपने प्राइवेट में डाला, इंग्लिश अच्छी, आप चाहती है इसका मैथ्स अच्छा हो, इसकी केमिस्ट्री अच्छी हो, इसको अच्छी तालीम मिले, इसका बेस अच्छा बने, तो आप थोड़ा सा लड़की के बारे में भी तो सोचें। नहीं तो उसको करना क्या है, थोड़ी दिनों में इसकी शादी करनी है, उसको अपने घर जाना है। तो मैं लड़की को इसलिए पढ़ाना चाहती हूँ कि ये जाए किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में हो, किसी वही 9 to 5 जॉब करे, तो मैं इसके लिए इसके साथ इसको इस पे लगा रही हूँ। लड़की ने मुझे क्या दे रहे हैं? देखिए, लड़के को मेरी आंखों में आंसू आ गए। अभी मैं यहाँ देखती हूँ, इनकी बच्चियों को देखती हूँ, आप देखें ओलंपिक्स में जा रही हैं, एथलेट्स बन रही हैं, इतने बड़े बड़े मैदान फतह कर रही हैं, तो कौन है? लड़कियाँ हैं ना। मैं आपको एक और खबर भी बताता हूँ। सबसे पहले तो वो लड़के को पैसे की मशीन समझा जाता है। आज इस मशीन को हम अच्छे से तैयार कर लें, कल को लड़की ने वैसे किसी के घर जाना है, ये नहीं सोच रहे कि उसने पूरी नस्ल बनानी है। आज अगर आप एक माँ हैं, आप अपने बच्चे को तालीम दे रही हैं क्योंकि आप समझदार हैं, तो आप अपनी बेटी को इतना शऊर दे, कल को वो अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर करे। अभी एक लड़की है सादकाबाद की, शफीका, वाहिद पाकिस्तानी लड़की, गूगल पे जॉब मिली उसके, वायरल, उसके इंटरव्यूज़, उनसे गपशप, वाहिद पाकिस्तानी लड़की। वो कौन सा कंट्री था जहाँ पे यूक्रेन के बराबर में, जहाँ पे पोलैंड में गूगल का एक ऑफिस है, वहाँ से जॉब मिली। सादकाबाद से उसने अप्लाई किया। वो उससे पूछा गया कि आप कैसे वहाँ तक पहुँची, तो बताया गया कि उसने बताया कि मैं आर्टिकल भी लिखती थी गूगल पे, मैं मतलब है कि कुछ ना कुछ वो करती थी, फ्रीलांसिंग वगैरह भी करती थी।
तो आर्टिकल्स की वजह से उस गूगल वालों की नज़र में आई, फिर मतलब उसने अप्लाई भी किया, फिर उसका ऑनलाइन, और हाँ जिस दिन उसका लास्ट इंटरव्यू था ऑनलाइन, सादकाबाद में बैठी हुई है और कहीं से उसका ऑनलाइन इंटरव्यू, पोलैंड में नेट बंद, इंटरनेट बंद हो गया ड्यूरिंग द इंटरव्यू। फिर भी पता नहीं किसी तरीके से हाँ, मामला मैनेज करा होगा, मैनेज सही। किया होगा, लेकिन ये है कि उस टाइम इंटरव्यू तो बहुत बड़ी बात है ये। और ये इसके बताने का मकसद है कि इंडियंस कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, आईटी कंपनीज़ में जॉब करते हैं, नॉर्मल हज़ारों इंडियंस होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, एक पाकिस्तानी लड़की गूगल पे पहुंची तो मतलब खुशी का कोई पैमाना नहीं। मतलब हम बहुत छोटे से गांव में हैं क्या? मतलब पाकिस्तान एक छोटा सा एक बहुत ही अनपढ़ लोगों का गांव है। लेकिन एक बात बताओ, इसकी खुशी इसलिए भी ज़्यादा है कि ये पहली बार इन्होंने एक तरीके से ये एजाज़ हासिल करा, पहली बार इन्होंने एक कदम बढ़ाया, शफीका इकबाल इन्होंने ट्राई किया, और देखिए लड़की है, लड़की है, कोई लड़का नहीं, लड़की है, और किसी बड़े शहर से नहीं, सादकाबाद से, सादकाबाद, पंजाब से। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी खबर थी ये, और एक लड़की उसकी इतनी वायरल, यानी कि हमारे यहाँ आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है, एक लड़की अगर पाकिस्तान से गूगल तक जॉब कर रही है, नॉर्मल सी जॉब कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये बात बहुत बड़ी बात है। ये बात आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है, नहीं समझी? मैं समझ गई कि ये बात पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इंडियंस कहेंगे कि हमारा तो छोटा छोटा रॉकेट बना रहे हैं स्कूल के बच्चे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बच्चों का इंग्लिश सीखना। दोबारा कि मेरी अपनी भी घर घर से राज के वाला कहानी दोबारा किसी बड़े साहब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।